Question number 46. Sir, question number 46. Statement is laid on. Yeah. Sir, his predecessor practically boasted of holding 2.5 lakh meeting from state level to village level to get feedback on education policy. I don't know whether there was any saffronization discussed in these levels of meeting, but your MOS who is elected from Agra said recently, Mr. Ram Shankar Kataria, there will be saffronization of education and the country and term the process as beneficial for the country. He said that some journalists asked if we were promoting saffronization of education. I am saying yes, there will be saffronization of education and of the country. जो अच्छा है वो होगा. Whatever is good, that will happen. Be it saffronization or Sangavad. This is your MOS said. What's the supplementary? Are you agreeing with this? पढ़ा नहीं. और दूसरा, एक मिनट. The issue is, मुझे लगता है कि शिक्षा हम सबकी आस्था है. सबका मुद्दा है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और इसलिए ये नया प्रस्ताव जो है, जो ड्राफ्ट स्टेज में ही है, कोई फाइनल नहीं हुआ है, तो ये आपके सुझावों के लिए खुला भी किया है. उसकी भी मैं प्रक्रिया बताता हूँ. एक मिनट, मैं बता रहा हूँ. देखो, शिक्षा भारत सरकार की. सुन लीजिए, बात सुन लीजिए उनकी. बोलो. नहीं, आप उनको देखिए, आपका सवाल नहीं है. हाँ, वो जवाब दे रहे हैं उस सप्लीमेंट्री का. देखो, शिक्षा देश के सब घरों में पहुंचने वाला ज्ञानदीप है. ये सबका विषय है और इसको हम सबके सलाह से एक अच्छी नीति कारगर तैयार करेंगे. और इसलिए इसका नाम आप ही समझ लीजिए कि ये सबकी शिक्षा है और अच्छी शिक्षा इसी नीति के तहत ये चलेगी. सेकंड क्वेश्चन प्लीज. सेकंड क्वेश्चन आई एम आस्किंग, बट MOS का स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा. सर, यू हैव टू डायरेक्ट हिम. व्हाई इज MOS has made statement? My second supplementary is, sir, I am insisting that he should reply. His silence is accepted. He is the policy. Please listen carefully. Earlier you have not listened and you have evaded. Is the policy going to deal with morning prayers in schools, welcome songs sung there, and or eradication of superstitious belief prevailing in the society in the name of religion? Is the policy going to deal with this aspect? Please be clear, at least this time. Thank you. Shri No, that's all right. That's not your question. No, Mistry ji, that's not your question. He has answered the question. बैठ जाइए. Mr. Mistry, it's not your question. If you are not satisfied with the answer, there are procedures for it. Please sit down. Shri Derek O'Brien, please. भाई, आपका सवाल नहीं है. देखिए, आपके साथी का सवाल था, आपका नहीं है. Yes, Mr. O'Brien. Sir, before I ask my question, I want to use this opportunity to congratulate the minister. This is the first time he's here in his new ministry. Then I will ask him the question, sir. Yes. One question with 2 points. Sir, this is a draft education policy.
And here in the answer it's also given these are some inputs. So I'm quite sure that the minister will seek other inputs. The concerns are two, and I want the minister today to clarify once and for all these two concerns and sets the matter at rest. The first and the second in 3 sentences, sir. The first one, common knowledge that education is number 25 on the concurrent list. So will the minister assure this house, as my colleague said, even though there have been 250,000 meetings held, that the state's powers at no point will be interfered with? As I say this, sir, there are over 12,000 missionaries, Christian missionary schools in this country who are very concerned. These Christian missionary schools do not teach Christians. They teach Hindus, Muslims, Jains, Buddhists, everyone. So many of us here have been to missionary schools. And they are not Christian missionary schools. They are secular missionary schools run by Christian missionaries. The issue here is, I would like the minister to put all doubt at rest and to say that he will take everybody along in a general sense. I don't want to get into specifics now, but this is a concern for so many of us who from different religions have passed out of these schools. And some of these schools are not only run by Christian missionaries, they are run by missionaries of other minority communities, including the great work done by the Ramakrishna Mission. Thank you, sir. पिछले सप्ताह इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई। इंटरस्टेट काउंसिल के मीटिंग में पहली दफ़ा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये विषय था। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट all the chief ministers spoke with passion on this quality aspect, and therefore it is not taking away powers of state but working with the state as a partnership. This is a concurrent subject, और मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि स्टेट के अधिकारियों पर बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन शिक्षा को अच्छा और बेहतर बनाएंगे। एक दूसरा, जो मिशनरी स्कूल्स के लिए आपने उल्लेख किया, कोई भी शिक्षा संस्था जो नियमों के अनुसार चल रही है उसको कोई खतरा नहीं है, कोई उसको बंद करना या कुछ करने का संकट नहीं है। दूसरा, जो अच्छा काम करते हैं उनको एप्रिशिएट कैसा किया जाएगा, इसकी हम योजना बनाएंगे। श्री बसवराज पाटिल। माननीय सभापति जी, मैंने इस ड्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ थोड़ा पढ़ा हो। मैं माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करता हूं, जो शिक्षा नॉलेज के लिए है, आज सारे देश में नौकरी नाम पर करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार होकर, डिमोरलाइज होकर देश में भार बन रहे हैं। इसलिए एक बार लाउड थिंकिंग, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और स्किल मिनिस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और देश विदेश के व्यवहार, इन सब लोगों के साथ बैठकर पूरे देश की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले जैसा कोई नई नीति इसमें जोड़ी जाएगी तो ये देश के लिए लंबा समय के लिए अच्छा होगा। ये सरकार सोचेगी क्या, मैं पूछता हूँ। 1986 में नई शिक्षा नीति बनी थी और 92 से उसका अमल हुआ था। अब उसको भी लगभग 23 साल हो गए हैं और इसके लिए इसका पुनर्लोकन करके एक अच्छी नीति जो आज के समय के अनुकूल है और जो देश को आगे ले जाएगी, इसकी ज़रूरत है। इसके लिए ये पब्लिक कंसल्टेशन एट वेरियस स्टेजेस हुए हैं और अब भी कोई बंद नहीं हुआ है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी 31 जुलाई तक, मैंने आपके हमारे जवाब में दिया भी है, कहाँ उपलब्ध है, 46 पेज का है। वो लगे तो हम इनपुट यहाँ भी मैं टेबल पे रखूँगा तो सभी मेंबर्स को वितरित करेंगे। और आपके हमें सजेशन चाहिए। मैं तो सबको ये अपील कर रहा हूँ कि अच्छे सुझाव दे। और 31 जुलाई अगर जल्दी हो रहा है ऐसा लगता है तो हम 15 अगस्त तक भी इसको बढ़ाएंगे और 15 अगस्त तक आपके सुझाव सबके लेंगे, क्योंकि आई वांट दिस टू बी अ नेशनल मिशन इन अ रियल वे। और इसलिए बहुत सारे हुए, 1,10,000 गाँव में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और सब लोग बैठ के उन्होंने सुझाव दिए, वो भी वेबसाइट पे रखे हैं। बीडीओ पंचायत समिति, इन्होंने बैठकर और वहाँ के
प्राचार्य, हेडमास्टर, ये वो सब उन्होंने बैठकर भी सुझाव दिए। वो 3250 जगह हुए, उसका भी रिकॉर्ड है। 1 मिनट, रिकॉर्ड हुआ। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ZPs, लोकल एजुकेशन, उनके सब शिक्षा के संबंध के लोग, उनके भी बैठ के किया। अर्बन सेंटर्स में भी किया। स्टेट के साथ 21 स्टेट ने लिखित भेजा, लेकिन जोनल कॉन्फ्रेंस पहले मंत्री ने किया और वो सभी राज्यों, 1 मिनट नहीं, एक ही वाक्य, MPs के लिए तो मैंने अभी अपील किया कि अभी जो है मैं आपको सबको ड्राफ्ट कल ही मिलेगा, इसकी व्यवस्था करेंगे। 1 मिनट, और आपको 15 अगस्त तक आपके सुझावों का स्वागत है और ये सभी सुझावों को हम विचार करेंगे। Thank you, Shri T.K. Rangarajan. Policy and the paper submitted has created a lot of confusion among the teaching community. There are a lot of seminars are going on and there are confused things are there in that document. I request the minister, as he has sure let him place it, there must be a discussion in this house. Please take us also. You said that politicians are not allowed, politicalization is not allowed. No, who said? Everything is politicized in the world today. Don't threaten people. And the state power you should not encroach. In the name of concurrent list, the center will have more power to intervene in the state. That we cannot allow. And I would like to say, we had Gurukulam education. We had Macaulay education. Now again we are going back to Gurukulam education. The Hindutva method of education will not suit this country. The Brahminical type of education will not suit to the country. So I request the minister, please clarify everything and please put the document in the house and we will discuss, take the house also into confidence. Thank you. As I said, मैं तो ये जो इनपुट है जो वेबसाइट पर है आपके सुविधा के लिए, मैं I'll give it to all the members that I am doing. You are requested to participate enthusiastic in by 15th August. Your suggestions are welcome. As far as discussion is concerned, so nothing is finalized. So as far as discussion is concerned, is the prerogative of the chairman. So as per his directions, we can discuss anything. We are never shy of discussion. And let me tell you, we are not encroaching state's power. It was brought into concurrent list in 1976, not 2014. nahi hai. This has been brought in concurrent list in 1976, and therefore this is the system for last more than 40 years, and therefore we have to be, we will work together, and states are our important stakeholders and partners. Thank you. Question 48. Question 48, sir. Thank you. Answer is laid on the table of the House. Sir, my original question was, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, उनके प्रति क्या वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान गवर्नमेंट बना रही है? माननीय मंत्री जी का जो जवाब है उसमें मुझे ये बताया गया कि उन कॉलेजेस में आफ्टर कॉलेज शाम को जो स्किल डेवलपमेंट की वो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। हालांकि इनका मंत्री जी के जवाब से ये है कि 10,000 कॉलेजेस में वो करना है और 1500 कॉलेजेस में हो चुका है, तो आप उसको बहुत एंथुजियास्टिक कहते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी का फेवरेट सब्जेक्ट है स्किल डेवलपमेंट, एंड राइटफुली सो। मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। मेरा ये कहना है कि थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू AICTE फॉर क्लोजर। दैट वाज पार्ट ऑफ माय ओरिजिनल क्वेश्चन आल्सो। तो क्या कोई आप ऐसी स्कीम बना रहे हैं या बनाएंगे जहाँ पे वो कॉलेजेस जो बंद हो रहे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर में तब्दील किया जा सके? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को आपने उठाया है, लेकिन हमारे पास जो आपका सवाल आया उसमें वेदर इट इज़ अ फैक्ट दैट द स्कीम इज बीइंग फॉर्मुलेटेड टू कन्वर्ट एक्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इनटू स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। पर आपने अभी अपना भाव बताया कि जो बंद हो रहे कॉलेज और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब बंद होने के अनेक कारण है, उसकी अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन स्किल मंत्रालय, परसों जो एक कार्यक्रम हुआ राष्ट्रपति की उपस्थिति में, तो माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ भी स्किल मंत्रालय ने ये कहा है कि वो सभी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका स्किल डेवलपमेंट के लिए उपयोग होगा वो करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सवाल एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है
जो बंद हुए उसकी नहीं चर्चा है। तो एग्जिस्टिंग कॉलेज में 10,000 कॉलेजेस है और 1500 ने तो तुरंत रिस्पॉन्ड दिया, लेकिन बाकी भी उनको हम 3 चीज़ें दे रहे हैं और ये महत्वपूर्ण है। पहले तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने समय खत्म होने के बाद शाम को जब वो खाली रहता है उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए उपयोग करें। उनके ही प्रोफेसर्स हैं, उनके टेक्नीशियंस हैं, बाहर से भी वो ले सकते हैं। पर स्टूडेंट एचआरडी मंत्रालय 28 रुपये से 40 रुपये पर आवर पर स्टूडेंट, इतना पैसा ये स्किलिंग का कार्यक्रम चलाने के लिए देगा और ये एक एडिशनल कैपेसिटी बिल्टअप हो जाएगी। और देखो अभी हमने एक और भी निर्णय लिया कि पॉलिटेक्निक कैन रन ITIs। अभी हमारे देश में 12,000 ITIs है, 17 लाख उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो ये ITI की भी नंबर बढ़ाने का बात है। तो 3 तरीके से स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें HRD भी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके बचे हुए समय में 10 लाख युवाओं को एक साल में शिक्षा ज़्यादा अच्छा स्किल का शिक्षा दे, यही उसका कार्यक्रम का उद्देश्य। Shri Satish Mishra, your second question, sorry. Sir, it's a very novel idea and a noble idea. I appreciate that. पर मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि ये जो कोर्सेज चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के ऑलरेडी चल रहे हैं, उन बच्चों की प्लेसमेंट कैसे हो रही है? क्या उसके लिए कोई सरकार की प्लानिंग है? क्योंकि अगर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट कर दिया और उसके बाद उसको कोई जॉब नहीं मिली, तो क्या इसके लिए कोई विशेष योजना या विशेष कोई कार्यक्रम है जिसमें हम ये नोट कर रहे हैं कि एक नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही? एक्चुअली स्किल कौशल मंत्रालय का ज़्यादा सवाल बनता है, लेकिन जो मुझे जानकारी है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हर जिले का स्किल रिक्वायर मैपिंग कुछ जिलों में हुआ है, कुछ जिलों का हो रहा है। तो वो उसके आधार पे वही स्किल सिखाए जाएंगे कि जिसकी वहाँ आवश्यकता है, और जो पैसा भी देने वाले हैं वहाँ भी और यहाँ भी वो प्लेसमेंट के आधार पर ही, यानी प्लेसमेंट कितना होता है वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन है वो स्किलिंग सेंटर का। तो वो जो यस, Thank you. Shri Satish Mishra. जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में भी कहा है, और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आपकी है, आपने खुद भी कहा, और स्किल डेवलपमेंट अगर देश का हो तो अच्छा भी होगा। लेकिन इसमें जो आपका जवाब है, आपने उसमें कहा है कि योजना के तहत आप 10,000 कॉलेजेस को इसमें इंक्लूड करके और 10 लाख लोगों को 2019 तक आपकी स्कीम है कि उनको हम इसमें इन्वॉल्व कर लें। लास्ट जो आपका जवाब है उसमें आपने कहा लेकिन अभी तक सिर्फ 1500 कॉलेजेस ने आपको रिस्पांस दिया है और अपना इंटरेस्ट दिखाया है। मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय कि मंत्री जी से कि इन्होंने सिर्फ आपको ऑफर इंटरेस्ट दिखाया है या आज तक आपके पास कितने कॉलेजेस हैं जो एक्चुअली इस महत्वपूर्ण स्कीम के तहत में वो आ गए हैं और अपना उन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पर? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या इसमें कुछ कमी है? क्या कुछ इंसेंटिव्स को और देने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है? ये इसका जवाब। इसमें जो शुरू में चर्चा हुई तो संस्थाओं के साथ भी चर्चा हुई और उनके जो मुद्दे थे, क्योंकि एक सुझाव था कि भाई प्राइवेट दूसरे लोग आकर वहाँ चलाएंगे तो वो जो संस्था है उनका लैबोरेटरी है तो वो कहेंगे हम ही करेंगे, तो वो ठीक है। और वो अब एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड, तो मुझे लगता है इसको बहुत स्टार्ट इस एजुकेशन वर्ष से, ये शैक्षणिक वर्ष की अभी शुरुआत हो रही है, तो इस साल से इसको बहुत गति मिलेगी और इसी साल इससे बड़ा मुकाम कायम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। श्री राजीव शुक्ला। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि AICTE जो HRD मिनिस्ट्री की संस्था है वो इनको देखेगी और उनको चलाएगी। जो मॉडल है स्किल डेवलपमेंट का, उसमें राज्य सरकारों के पास ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएं और उनको चलाएं। क्या ये HRD मिनिस्ट्री SIT डायरेक्ट इनका सुपरविजन करे? क्योंकि स्कीम बहुत अच्छी है
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ही। तो डायरेक्ट सुपरविजन करेगी या राज्य सरकारों के जरिए होगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने ये काम प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया है जगह जगह एरिया बना के, हर जोन में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप डायरेक्टली इनको सुपरवाइज करेंगे इन 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, या स्टेट गवर्नमेंट्स के उसी प्रोसीजर के थ्रू होगा जो प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं? ऐसा है, जो पहली दफ़ा प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास मंत्रालय का निर्माण किया है, तो बाकी जो कौशल विकास के अनेक जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं और नया नया कौशल विकास के केंद्र बनेंगे, उसका तो मॉनिटरिंग वो मंत्रालय करता है, और ओवरसी भी टोटल स्कीम का वही देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एग्जिस्टिंग 10,000 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेजेस है, उनका पैसा भी हम देंगे हमारे बजट से, और उसमें ये एडिशनल मैन पावर तैयार होगी, इसका मॉनिटरिंग हम करेंगे। नहीं, ये AICT करती है टू दोज कॉलेजेस। नहीं, ये AICT करती है, कॉलेज को वैसे भी AICT विल बी डायरेक्टली सुपरवाइजिंग दीज कॉलेजेस। ये ऐसा अभी भी स्कीम जो है, इसमें एडेड भी होते हैं, अनएडेड भी होते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार जो काम करती है वो राज्य सरकार करती रहेगी। इसमें क्या है स्कीम का अगर है, अभी जवाब ना हो तो मैं बाद में लिख के मैं वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसका जो पैसा देना है वो हमारे बजट से पैसा हम ये देंगे, और स्किल काउंसिल्स जिसमें राज्य सरकार की भी सहभागिता है, जो स्किल काउंसिल है SKPs और NSDA के, वो अप्रूव्ड स्किल काउंसिल इसको मॉनिटर करेंगे। Sir, he didn't get my question. What I was asking. No supplementary Sir, on there's- supplementary. No, Please. There is ambiguity in the answer. Answer hasn't come. No, Sir, no, this let, ambiguity- This is, please, Yachuri ji, it's not your question. That's what he's asking. Thank you. Thank you. Yes. Are you making this a commercialization of skill education, or is it It's all going to right. be accessible to Yachuri all? ji, That is it's not नहीं, your मैं question. पहले बताना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, वो पब्लिक फंडेड ही इंस्टीट्यूट रहेगी, उसमें कोई प्राइवेट का मुद्दा नहीं है। जो मैं वही बता रहा हूँ, जो रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट क्षेत्र में भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी है, बहुत अनेक लोगों के हैं। इसमें AICT डायरेक्टली वहाँ पर स्टूडेंट पर आवर जो पैसा देना है, वो सेंटर्स को यानी कॉलेजेस को 30% ऑन एडमिशन, 70% तक यानी नेक्स्ट 40% ऑन यूटिलाइजेशन, 20% आफ्टर कंप्लीशन एंड 20% आफ्टर जॉब, ऐसा वो देने का प्रोविजन है। तो इसलिए ये जो केंद्र जैसे चल रहे हैं, पब्लिक फंडेड ही है, उसमें प्राइवेटाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है। Thank you, Shri Vinay Samarashok Budhe. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हम जानते हैं, हमारे देश की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट से भी अधिक अनएम्प्लॉयबिलिटी की है, और मनुष्य शक्ति की आवश्यकता एक तरफ है और मनुष्य शक्ति का निर्माण दूसरी तरफ है। ये शुक्र है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम चल रहा है। मेरे पर्टिनेंट क्वेश्चंस दो ही है। एक ये है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन जो है वो जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक उद्योग जगत की आवश्यकता और जिस तरीके की मनुष्य शक्ति का निर्माण है, इसमें हम आवश्यक तालमेल बैठा नहीं पाएंगे। क्या इसकी कोई योजना है? और दूसरा, जो पाठ्यक्रम है, क्या उनका बायनियल कोई रिव्यू हो सकता है? क्योंकि तकनीकी और शोध इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, उस रूप में हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हो रहा। इस पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि समयानुकूल ये रिवाइज होना चाहिए करिकुलम, और वो डायनामिक है, तो उसके बारे में बहुत सारी इनिशिएटिव उच्च शिक्षा के स्तर में लिए हैं। जब अलग से चर्चा होगी तो हम उसका और डिटेल्स में देंगे। सवाल है, एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट मिशन एक हमारे यहाँ योजना चल रही है, उसके अंदर स्किलिंग और ये 10 स्किल कंटेंट्स और अप्रेंटिसशिप और बहुत सारे उपक्रम उसके द्वारा किया जा रहा है। एक III सेल्स आर फंडेड बाय AICTs, तो CII AICT जो इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन की आपने बात की, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए इंडस्ट्री के जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स है रिसर्च की, उसके लिए भी एक योजना तैयार हो रही है। जो इंडस्ट्री इंटरेक्शन से कोर्सेज का रेलेवेंस, और ITIs में भी ये बहुत मात्रा में अभी इंडस्ट्रीज
ITI चला भी रहे हैं, सक्सेसफुली है और सबको रोजगार तुरंत मिल रहा है। तो इंडस्ट्री इंटरेक्शन जो दुनिया का अनुभव है, वैसे ही यहाँ भी एकेडेमिया और इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन ये बिल्कुल चलनी चाहिए, तभी शिक्षा सार्थक होगी। और कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू हैव इंडस्ट्रियल टाई अप फॉर प्रैक्टिकल एंड वो अप्रेंटिसशिप। तो ये है तीनों चारों मुकाम पर ये काम चल रहा है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। Thank. Question number 50. Question number 50, sir. Yes. Answer is laid on the table of 50. Supplementary, please. धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर, माननीय मंत्री जी से मैं सर पूछना चाहती हूँ, जो सरकार ने नए शिक्षा नीति में सर 1 साल लंबे प्रक्रिया सर चलाई और समिति भी गठन किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ सर, आपने जो साइड में जो ब्यौरा दिया गया है, जो 2.5 लाख विलेज एजुकेशन कमेटी बनेगा, फिर ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होगा, फिर स्टेट लेवल पे मीटिंग होगा, तो सर ये इसका कोई समय सीमा निर्धारित किया गया है और कितने साल और लगेगा, 5 साल या 10 साल, और कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा? ये तो पहले जो राज्य और जिला और स्थानीय लेवल पे कंसल्टेशन है वो प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर जो ऑनलाइन मांगे थे उसमें 29,000 प्रतिक्रियाएं देश भर से आई। उसके बाद जोनल कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें सभी राज्यों के, लगभग सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और सभी राज्यों के प्रमुख शिक्षा अधिकारी ये सब थे। तो ये प्रक्रिया तो हो चुकी। अब जो जिस्ट वहाँ दिया है और जो मैंने कहा कि आपको सबको भी हम तुरंत दे देंगे, क्योंकि इस पर आप सब लोगों की और बाकी लोगों को भी वेबसाइट पर देने के लिए और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। देखो, शिक्षा के बारे में लोगों में इतनी जागृति है और इसलिए लोग उस पर भरपूर दे रहे हैं और हम सभी का संज्ञान भी लेंगे और इसको जितना आवश्यक समय है उतना लगाकर हम नई नीति करेंगे जो देश के फायदे की होगी। यस सर जी। सर इम्प्लीमेंट कब होगी? Sharad ji, that has not been our practice. I agree with you that 70% it is the same, but it is a balloted question. The right of the member who's got. Please, no, they are not identical. The question is they are not identical, and let the members ask the question and be satisfied with the answer. Your second question, please. सर, कब तक सर इम्प्लीमेंट होगा ये सब? होने के बाद उसी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन का नक्शा तैयार होगा। जैसे आपके सलाह के बाद और सबके सलाह के बाद इसकी रूपरेखा तैयार होगी और बताया जाएगा समय पर। उसकी कोई तिथि तय नहीं है, लेकिन ये जल्दी करना है। देश की मांग है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और यही उसकी नींव है। सेकंड क्वेश्चन प्लीज, क्विकली। हो गया, ऑल राइट। श्री रवि प्रकाश वर्मा, जस्ट अ मिनट प्लीज। जो बात आदरणीय शरद साहब कह रहे थे, सर 2 अलग अलग सवाल है लेकिन जवाब उनका कॉमन है। उनका जवाब कॉमन है सर। सेम आंसर विद सेम आंसर। शर्मा जी, सर, no, there is no practice of clubbing this question. I'm sorry. Sir, but the answer is same for all 3 questions. Answer sir, is same. Kindly allow me. I am sorry. I know. I will look into the matter. If the wording of the question is not identical, then it is admitted for balloting. If it is balloted, then the chair cannot come in. Sir, sir. No, look, if 1 minute, 1 minute har jaiye. Let me explain. If the chair were to sit in judgment on the wording of questions, then I think it would not be fair to the honorable members. They ask questions to the best of their judgment in a particular way. And if a question is balloted, then it is balloted.
Sir, it's not been our practice. I know it used to be an earlier practice. All right. I agree with you. I agree with you. I'll have a look at it. Yes, sir. Mekaji. Sir, earlier also, when we were in opposition also, that practice was there. I request you just to look into this aspect, and then because it will be easy for the members to have a comprehensive approach to ask questions and also the minister to give reply. Identical questions normally on the request of the members is clubbed. That practice has been there. I shall discuss it with you separately. I know the background to this matter. Let me get on with the supplementaries. Mr. Rapullo. अच्छा आपका सॉरी यस आई एम सॉरी सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन लॉ पास होने के बाद में भी इसको बड़ा एडहॉक तरीके से लिया जा रहा है। सर हिंदुस्तान के बच्चे बहुत दिन इंतजार नहीं कर सकते। सर इतना समय हो गया सर, अभी तक ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो तदर्थ व्यवस्था बना के चलाया जा रहा है। इसको एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में तब्दील हो जाना चाहिए था। सर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार बहुत ही जल्दी इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करके सर हमें ये बताएं कि क्या ये फॉर्मल नेबरहुड स्कूल के तरीके से कोई एक एजुकेशन सिस्टम चलाने जा रहे हैं या ये व्यवस्था तदर्थ चलती रहेगी अनंत काल तक भाग्य के सहारे। थैंक यू। ये तदर्थ चलने की व्यवस्था नहीं है, यह देश में एक स्थायी हो चुकी और पिछले 15, 16, 17 साल से ये एक अच्छी व्यवस्था चल रही है, जिससे हमने लगभग 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी डिनोटिफाइड ट्राइब के जो धुमंतु जातियाँ है उनके अभी भी स्कूल में नहीं है, लेकिन उनको भी इसीलिए मैंने पहली विजिट मेरी नाइट स्कूल में की, क्योंकि नाइट स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनको वो शिक्षा मिलती है। मैं जस्ट एक बात, बाकी आपके विचार जो है वो तो दे आर सजेशन फॉर एक्शन, जस्ट एक बताऊंगा कि क्या थीम्स पर ये सब हो रहा है कि इंश्योरिंग लर्निंग आउटकम्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रसार तो हो गया, अब क्वालिटी लानी है तो लर्निंग आउटकम क्या आ रहे हैं, बच्चे को कितना आ रहा है, और इस पे सभी मुख्यमंत्रियों ने परसों जो पिछले सप्ताह हुई इंटरस्टेट काउंसिल उसमें बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं, उनको भी हम विचार कर रहे हैं। और एक्सटेंडिंग आउटरीच ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, रिफॉर्मिंग स्कूल एग्जाम सिस्टम, रिवैम्पिंग टीचर एजुकेशन फॉर क्वालिटी टीचर्स, accelerating rural literacy with special emphasis on women, scheduled caste, scheduled tribe, minorities through adult education and national open schooling, promotion of information and communication technology. So there are 13 themes for school education. मैं आपको ये अब जो ड्राफ्ट दूंगा आपको उसमें ये सब है, और 20 थीम हायर एजुकेशन के है जिसमें कुछ प्रमुख गवर्नेंस रिफॉर्म फॉर क्वालिटी, रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एक्रेडिटेशन, improving the quality of regulation. So there are many steps, and these are all our interest issues, and I want भाई आप बैठ जाइए, आप उसकी आप नोटिस दीजिए, वो होगा। श्री रापोलो। Respected Chairman, it is not unknown to us that as on this day, more than 70% of the students of the nation go to only government schools. And government schools are not having not only the facility of the Swachh toilet and all other facilities, but also no electricity, no facility to have the fan. What's the question? Will this government wish to coordinate and correlate with the Renewable Energy Ministry to ensure the 24/7 or the school hour electricity generation through solar or wind, so as to provide electricity to the government schools? What's the question? Whether they can coordinate with the Renewable Energy Ministry with their new mission to provide the electricity through solar and wind facilities to the government schools. Thank you. Thank you. पारंपरिक ऊर्जा के मंत्री और मेरी इसके बारे में चर्चा हुई है, एक ऑफिशियल मीटिंग भी होगी और उसके बाद जो योजना तय होगी आपको सूचित करेंगे। श्रीमती विजया सत्यनारायण। To know from the Honorable Minister whether the Kothari Commission, as the report of the Kothari Commission have been accepted, that is the privatization of school education,
And the next one is annually, how much is the budget allocation according to the compulsory free education 2016? Thank you. And to be very precise, would the communalization, that is bringing out Sanskrit as the third language, will affect the minds and souls of the intelligent children? Thank you. So that should be avoided. And could there be a discussion between all the stakeholders, in particular to the minorities? You have asked 3 questions in one. Yes, that is, the stakeholders should be here and their Thank you. genuine Please listen to reasons the they answer, said otherwise that time will also get should be over. heard. Yes, sir. Sir, she has asked 4 questions in one question, but I welcome. I was being generous. Yeah. But issue is, there is no compulsion made of any subject anywhere. Kothari Commission was based and it was implemented that time, and whatever recommendations were accepted of Kothari Commission. And now we are, after that, there was 86 policy which was started implementing from 92. And now we are entering into a new educational policy where everybody's participation is needed. And therefore, all our other suggestions, your questions, are actually suggestions for actions. And I have noted it. Thank you.